کو ساتھ لے کر چلنے والا ان کا رویہ نظر نہیں آ رہا. ان کے جو ٹریٹس ہیں وہ جس طریقے سے اپوزیشن کو مخاطب کر رہے ہیں, وزراء کا جو انداز تخاطب وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو تمام چیزیں اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر باہمی اتفاق سے حل کرتی ہے, اور یہ بہت اہم ایشو ہے اور لیجسلیشن کا ایشو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اپنے رویے میں لچک آنی چاہیے, اور یہ جو اتنا سیریس ایشو ہے جو پارلیمنٹ کی طرف لے رہی ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. تھینک یو میم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ بڑا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے, جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے اس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھتے ہوئے پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی. اور میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر ہمیں بیٹھ کر تمام مسائل کا حل کرنا ہے, اور حل کرنے کی جگہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے, اور ہمیشہ ہمارا موقف یہی رہا. اب بات ہے کہ حکومت کا جو رویہ, جو پرائم منسٹر پاکستان کے چیفس اور جو ان کا لہجہ لب و لہجہ بتا رہا ہے, وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں سیریس ہیں. وہ اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ جو 3 لائن کی ایک سمری گئی اور اس میں 3 دن تک جو حکومت نے کی جو تصدیق ہوئی, اور تمام تر جو دماغ تھے, چاہے وہ اٹارنی جنرل تھے, چاہے وہ بیرسٹرس تھے, بڑے ماہر قانون تھے, ان سب سے مل کر 3 لائن کی وہ سمری جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لیجسلیشن کا پروسیس حکومت کو اب سنجیدگی کے عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپوزیشن اور حکومت جب تک ایک پیش پہ نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہوں گے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں ملک کے لیے, قوم کے لیے, تاکہ ہم بہترین طور پر لیجسلیشن کر سکیں جو وقت کا تقاضا ہے. الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ اگر ڈیلے ہو رہا ہے, اس حوالے سے کیا موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام تر معاملات جو کہ فوری طور پر حل ہو جانا چاہیے وہ اور حل طلب جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. وہ حکومت کی نااہلی ماضی میں بھی اس طریقے کے الیکشن کمیشن کے ارکان کی بھی تقرری ہوئی اور دیگر اداروں کے بھی سربراہان کی تقرری ہوئی, لیکن باہمی مشاورت کے ذریعے ہوئی. آج حکومت کا جس طریقے سے حکومت کا جو رویہ ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 2 دن ہو گیا پارلیمانی میٹنگ ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی کہ ٹائم بالکل سر پر آ گیا, اور حکومت جو ہے وہ کسی بھی چیز کو نہ تو سیریس لے رہی ہے اور نہ ہی وہ مجھے حل کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے. بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ ہے, اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, آپ تو اس کمیٹی کا بھی حصہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک جو ہے وہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اور حکومت اس میں آپ کو کوئی سیریس اب نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہر کام میں دیر کرنے والی حکومت ہے, اور ادھر ادھر سے انسٹرکشن لے کے یہ چل رہی ہے. مطلب فائل حکومت تو نہیں ہے نا, فائل تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو مفعول ہیں, تو ہر کام میں دیر ہو جاتا ہے. یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لوکل باڈیز سے لے کے تمام الیکشن کی کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے, اس کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے لیٹ کیا ہے. اور لیٹ اس لیے بھی کیا ہے کہ اپوزیشن سے حکومت بات ہی نہیں کرنا چاہتی. جب پرائم منسٹر ہاتھ نہ ملانا چاہے اپوزیشن لیڈر سے تو پھر چیزیں کیسے مطلب کہ سارٹ آؤٹ ہوں گی, اور یہی ہو رہا ہے. تو آج بھی بھارت وہ مطلب کہ اب یہ طے ہوا ہے کہ اس کو ٹائم مانگا جائے گا ہائی کورٹ سے, جو کہ کل پرسوں شاید ختم ہو رہا ہے 2 ہفتے کا, اور اس کے اندر ہم چیف الیکشن کمشنر اور دونوں ممبروں کا اکٹھا فیصلہ کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دونوں ایک پیج پہ آ جائیں گے حکومت اور اپوزیشن؟ دیکھیں آنا تو چاہیے, اگر کوئی سینسیبل حکومت ہوتی تو یہ کب کا ہو چکا ہوتا. یہ زیادہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہوتی. میں نے جس طرح گزارش کی ہے کہ مطلب سینس تو پریویل ہی نہیں کرتا نا, ضد ہے, انا ہے, لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی خواہش ہے, لوگوں کو تکلیفیں دینے کی خواہش ہے, تو ایسے میں تو پھر یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ مطلب کہ تاخیر کے شکار ہوتے ہیں, اور جس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ حکومت چونکہ ایک لائی گئی حکومت ہے, یہ خود سے نہیں آئی, یہ ہری تھے, نتائج کو تبدیل کر کے لایا گیا ہے. تو ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ جو توقع ان سے ہے وہی ہے کہ ساری دنیا رو رہی ہے, پورا پاکستان رو رہا ہے, انڈسٹری بند ہے, لوگ بے روزگار ہوئے میں, مہنگائی ہے, مطلب ہر طرف تباہی ہے. اور وہ بابر وحش کوش کے عالم دوبارہ نے وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ 17 روپے کلو
टमाटर है, और एक इनकी जो मशीर इत्तलात है वो कह रही है 5 रुपए किलो मटर है। तो जितनी गाफिल अगर हुकूमत होगी तो फिर बाकी मामला भी वैसे ही। टमाटर, और अब तो मतलब कि टमाटर हालांकि इतने महंगे हो चुके हैं कि अगर आवाम टमाटर भी किसी को मारना चाहे तो मुश्किल हो गया है। सर मेरा भी सवाल तो नामों पर है, वो भी इंशाल्लाह ताला बामी जो है आपकी रजामंदी के साथ हो जाएगा। हमारी तरफ से किसी तरह से हुकूमत को कोई इनको प्रॉब्लम नहीं, ये कुछ अपनी ज़ाती अना और ज़िद का मसला बना ले तो हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। हुकूमत ने पहले दिन से लेके आज के दिन तक जो इनका मौक़िफ़ था कि जी शायद हुकूमत भागने जा रही है, हुकूमत भागी नहीं। हुकूमत इंशाल्लाह ताला ये चारों मेंबर जो चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन उसका चुनाव अच्छे तरीके से करते हैं। ना तजुर्बेकार लोग हैं, धुआंधार तस्वीरों के अलावा भी उन्हें कुछ भी नहीं आता, एक ड्राफ्ट तक लिखना नहीं आता। ये हुए तुम दोस्त उसके दुश्मन उसका आसमां क्या इस मसले का तलबा है पॉलिटिक्स से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की है। तलबा की जो सरगर्मियाँ होती हैं सियासी, वो एक नर्सरी होती है, वो उनको पॉलिटिकल ट्रेन करती हैं पॉलिटिकली, और वो फिर बर्दाश्त करने, हौसला रखने, डेमोक्रेटिक डायलॉग करने के आदी हो जाते हैं, जिसमें माशरे का इश्तियाल जो आज हमें नज़र आ रहा है वो कम से कम होता जाता है। वो इख्तलाफ रखते हैं, दुश्मनी नहीं करते। तो तलबा तंजीमों पर मेरा मौक़िफ़, ज़ाती मौक़िफ़ हमेशा से क्लियर है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और तलबा का हर दौर में हमेशा जब भी बड़ी बड़ी तब्दीली नुमायाँ हुई है पाकिस्तान में सियासी, तलबा का बड़ा किरदार रहा है और इस वक्त भी रहेगा। जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं इस हवाले से ये गलत, बिल्कुल गलत है। कोई मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मुकदमा तो आप देखें ना, ये तो पूरी हुकूमत की पॉलिसी ही जो है वो इंतकाम पर चल रही है। तो बाकी क्या मिल रहा है हमें, बाकी नज़र क्या आ रहा है? इट्स अप टू गवर्नमेंट। और इन नाहिल लोगों से जिनसे एक ड्राफ्ट तैयार नहीं होता, उनसे ये सवाल पूछा जाए। और अपोजिशन ने हमेशा संजीदगी से मुल्क के और हर कानून के लिए जो मुल्की मफाद में हो उसमें पूरी तरह अपना पार्टिसिपेशन दिया है और इस बार भी देगी। अच्छा सर, फिर फ्रेम भी कितने टाइम में ज़ाहिर है कि ये मुल्क के हवाले से इम्पोर्टेंट है? टाइम फ्रेम तो 6 महीने का उन्होंने दे दिया ना, मेरी क्या उन्होंने सजेस्ट करने नहीं, वाला। हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कितने टाइम फ्रेम में ये काम इसको जितनी उनकी एबिलिटी है वो उस तरह से करें। मतलब ये तो एबिलिटी पे है ना, एक काम मैं एक दिन में कर सकता हूँ, सकता है आप 2 दिन में ना कर सके। तो अगेन दिस एग्जाम ऑफ फेलियर्स। तो किसी बात पर गौर संजीदा नज़र आती है आपको, वो ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सकती, वो अपोजिशन के साथ डायलॉग नहीं कर सकती, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मसले पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले सकती, वो कीमतें कम नहीं कर सकती, वो मईशत ठीक नहीं कर सकती, वो नौकरियां नहीं दे सकती, वो मकानात नहीं दे सकती। मेरे भाई ये हुकूमत नहीं है, नायलों का टोला है। खुदा के वास्ते से कोई उम्मीद मत रखो। उनके दौर में क्रिकेट का बुरा हाल है। सिर्फ क्रिकेट में इसका खुद का भी बुरा हाल है और पूरे मुल्क का भी बुरा हाल है, बस बोलना बाकी रह गया। सर आज़म कायदे इख्तिलाफ से हाथ नहीं मिलाना चाहते। वो आज फैसल वावडा साहब कह रहे थे वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो इस माहौल में कैसे समझ देखें, हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, मगर ज़ाहिर है कि अपोजिशन लीडर की तरफ से भी नाम आते हैं, उस पर ज़ाहिर है कि प्रोसेस मतलब होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। तो आप समझते हैं कि कोशिश की जाए तो हो देखिए, होना चाहिए। माजी में भी तो होते हैं, माजी में भी तो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस कोई ऐसे मेरे ख्याल हर पे आखिर तो नहीं। थैंक यू। सबका आर्मी चीफों ने अपने लिए हैं। मेरा ख्याल है अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दी है तो आई थिंक उसको होना चाहिए। सर वो तो ठीक है, एक्सटेंशन का मामला हो गया, लेकिन अब कानून साजी का मामला है कि फ्यूचर में है या ये वाले हैं, कितने टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट में कितना टाइम लेना चाहिए इस पे कानून साजी का? गुजारिश ये है कि प्रीवियसली भी ऐसे आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दिए गए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नई कानून साजी ला के करंट आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत बढ़ाई गई है। मेरा ख्याल है पुराने पैटर्न पे हैं फिल वक्त। नए पैटर्न के लिए ज़ाहिर है अगर नए पैटर्न की तरफ जाना चाहते हैं तो हाउस है फिर। तो वो हाउस पे पूछ रही हूँ, टाइम फ्रेम 6 माह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास 6 माह है, इस पर जो कानून साजी करनी है कर लें। अब ये पार्लियामेंट में अगर आप कहते हैं कि 6 माह में ही मामले को करना चाहिए या 2-1 माह में भी टेकअप करके जल्दी से इस पर कन्फ्यूजन ख़त्म कर लें? देखिए, प्रीवियसली जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफाई किया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए, तो कई महीने हो गए
अगर तब कहीं से कोई बात नहीं चली, हाउस से भी नहीं चली, तो मेरा ख्याल है चीफ साहब को दे देने चाहिए 3 साल, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और उनके वोट की सख्त ज़रूरत है और वो ब्लैक मेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। उन्हें इस वक्त मुल्क के मफाद में और वसी तर बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्लैक मेलिंग के बजाय एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए। नूर आलम एक कुछ उमूर को निपटाने के लिए इस वक्त वोटों की ज़रूरत है और वो इस सूरत में से फ़ायदा उठा रही है अपोजिशन, और कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी वो ब्लैक मेलिंग करते हैं, कभी धमकियाँ लगाते हैं। तो इस सारी चीज़ों के पीछे जो है वो ब्लैक मेलिंग है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। थैंक यू। कुछ को ऐसे लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब को ये आखिरी महीना है। जो भी वज़ीर आज़म आता है तो मुखालिफ ग्रुप की यही ख्वाहिश होती है कि ये अगले महीने उतर जाए। नहीं, ख्वाहिश नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद हो ही नहीं सकता। पहले अदम एतमाद उनके पास मतलूबा तादाद पूरी होती तो अदम एतमाद ले आते। इस वक्त पूरी जो पार्लिमानी ग्रुप है और इत्तेहादी हैं वो सारे उसके साथ सीसा पले दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। अदम एतमाद कहाँ से आए? अच्छा, ये बताइए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बयान आया कि वो बहुत बीमार हैं दुबई में, उन्होंने 10 साल मुल्क की खिदमत की है, तो मुल्क की खिदमत मियाँ साहब ने भी की है, जरदारी साहब ने भी की है, मुशर्रफ साहब ने भी की है, तो फिर ये उनके एक तो बताया कि उनके बारे में कहना क्या चाहेंगे, फिर क्या ये बैलेंस क्यों नहीं है ये मामला सबके बारे में एक जैसा क्यों नहीं है सलूक? बस ये है कि कानून हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं। बाकी ये है कि जो कानून या अदालतें जो फैसला करती हैं, अब जो अदालतों का फैसला आता है उसके आगे हर किसी का सर खाम है। बात ये है कि जिस बंदे के पास वसाइल हूँ उसकी कोशिश होती है कि मैं जहाँ अच्छे से अच्छा इलाज हो वहाँ जाऊँ, जिसके पास वसाइल हूँ वो बाहर जाता भी है। अब ये तो उस मरीज़ की मर्ज़ी पे मुनहसर है कि वो कहाँ अपना इलाज करवाना चाहता है। कोई किसी को कंपेल तो नहीं कर सकता कि आप यहाँ इलाज करवाएं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई बाहर जाके इलाज करवाना चाहता है उसके पास वसाइल हैं और कानून भी उसको इजाज़त देता है तो वाई नॉट। ठीक है। महंगाई बढ़ रही है सर, कौन जिम्मेदार है और फ्यूचर क्या होना चाहिए आप समझते हैं? देखिए जी, महंगाई वाकई बढ़ी है। उससे असल बात ये थी कि हमारा एक तो रुपया डीवैल्यू हुआ है, उसका भी इफ़ेक्ट आना था, और कुछ जब हमारी नई हुकूमत आई है तो मईशत उन हालात में थी कि उसको संभाला देना था। इस वक्त अब अल्लाह के फजल से मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर, इंडिकेटर्स बेहतर हुए, तो मईशत के बेहतर होने के साथ महंगाई वगैरह ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। उसको जरूर गौर करना, उसे कंसिडर करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम जो ट्रायल हो रहा है उस पर किसी तरीके से आगे उसको फेस करना चाहिए। तो जिस तरह आप देखते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन बीमार होता है तो उसको कहा जाता है जी इधर इलाज है, इधर इलाज हो सकता है, तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन मेरा ख्याल है जो उन्होंने काम किया उसको तो फेस करना चाहिए। अच्छा, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाज़ आपके अरकान का ये कहना है कि हमारा उसूली मौक़िफ़ तो ये कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, आपको क्या ख्याल है? देखिए, ये बात नहीं है, मैं समझूँ ये एक ऐसा ऑफिस है जो एक जिसका एक वक़ार और कमांड और डिसिप्लिन का मसला है, तो इसको मेरा इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो भी करना है वो बड़े बावकार तरीके से करना। इमरान खान साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे ऑफिस में? मेरे बस में हो या मुझे पूछे तो फिर तो मैं समझूँ कि मुल्क का हाल हुआ है, जिस तरह लोग तंग हैं, जिस तरह हुक्मरानी हो रही है, तो उससे तो मेरा आप नया इलेक्शन अपोजिशन के बस में है उनको हटाना या नहीं हटाना? आपके बस में हो आप तो हटा देंगे, अपोजिशन के बस में है? अपोजिशन आई मीन के अवाम जो अवाम की आवाज़ है कि नया इलेक्शन नहीं, आदम एतमाद लाने में आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हम इस पे समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं, विद इन हाउस अगर कुछ चेंज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नया इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट के साथ जिसको भी मिले, PPP को मिले, PTI को मिले, PMLN को मिले नया मैंडेट, वो आगे अपनी गवर्नमेंट बनाए और अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करें। तो आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, यही बात आप समझिए। ये कि हम मामलात को पार्लियामेंट में हल करना चाहते हैं, क्या हुकूमत इस हवाले से संजीदा है? मेरा ख्याल है हमारी आज मीटिंग हुई है और उसमें मुझे उम्मीद है कि रिटायर होने से पहले 6 तारीख तक
मुझे कभी उम्मीद है कि संजीदगी कुछ नज़र आई है मुझे हुकूमती जो लोग हैं उनमें, और ये मसला हल हो जाएगा। और जितना मैं समझता हूँ ये जल्दी कर लें उतना ही, और कंसेंसस के साथ इत्तेफाक मुतफिक होकर अगर करेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा। अगर मसला यहाँ पर हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट आपने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर हल होंगे आपके मसाइल सारे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है जो रहबर कमेटी में कोई फैसला हुआ था तो वो गए हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो वकील हैं JUI के, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि उसमें यही प्रेयर है कि क्योंकि डिसफंक्शनल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन जब तक नया नहीं होता, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस नहीं शुरू किया जी। जो एक ऑब्लिगेशन है वज़ीर आज़म की, ये उनकी ड्यूटी थी, आईनी ड्यूटी थी कि वो 2 महीने या 45 दिन का टाइम है उसमें स्टार्ट करते वो कंसल्टेशन, मीनिंगफुल कंसल्टेशन जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया हुआ है। तो उन्होंने नहीं शुरू की, बल्कि 6 दिन पहले हमने लेटर लिखा लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 तारीख को, तो इसका आपने इनिशिएट नहीं किया प्रोसेस, तो प्लीज़ इसको इनिशिएट करें, कंसल्टेशन शुरू करें। तो ये 6 दिन की बात है। आज शायद उनकी तरफ से कोई लेटर आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिसफंक्शनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा अदारा है, अहम अदारा है, और जो भी उसके बाद इलेक्शन होंगे, ज़मीनी इलेक्शन या जो मामला वहाँ हैं, उनके लिए पूरी एक इलेक्शन कमीशन की जो कंपोजिशन है, जो कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद 2 रह जाएंगे, तो फिर वो डिसफंक्शन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसके जल्द से जल्द इसको पूरे के पूरे 2 मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर किया जाए, ताकि ये फंक्शन ही करता रहे इलेक्शन कमीशन। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लेजिस्लेशन होती है, मैं समझता हूँ अगर मुतफ़िका तौर पे हो, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो, अपोजिशन का इनपुट उसमें लें, और इसीलिए प्रोसेस जो है लेजिस्लेशन का वो आप देखेंगे कि कोई अगर कोई बिल पेश करते हैं तो अपोजिशन है, अगर कोई उनको कोई उसमें रिजर्वेशन हो तो वो अमेंडमेंट देते हैं, उस पर डिबेट होती है, तो वो बिल बेहतरीन कानून होगा जो मुतफ़िका तौर पे हो, और उसी से मुल्क और आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा या सिस्टम को। लेकिन PTI के जो पिछले दिनों आपने रवैया देखा, वो जब पार्लियामेंट की तारीख में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह उन्होंने बिल पेश किए या ऑर्डिनेंस ले किए, तो भी उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था हम वापस ले लेते हैं सारे जो बिल हैं और दोबारा इनको पेश करते हैं, और जो सही प्रोसेस है उसके ज़रिए हम करते हैं। उसमें जो अच्छे हैं बिल कानून उसमें अच्छे हैं लॉज, उस पर अपोजिशन को कोई इतराज़ नहीं है। वो 11 के करीब है, मेरा कुछ ऐसे हैं 6-7 हैं जो जितने हैं, उस पर कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, हमारे पहले भी उसमें इनपुट देते रहे हैं। तो जो 1, 2, 3 है उस पर वो उस प्रोसेस में लाएंगे, और जो हमें रिजर्वेशन है उसमें अमेंडमेंट देंगे, और वो अच्छी लेजिस्लेशन होती है जो इस प्रोसेस से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक अहम इदारा है, डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री, अरकान की तकर्री, देरी क्यों हो पाई, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम देने में देर की या हुकूमत की तरफ से देर हुई, मामला असल में आ गया? ये हुकूमत की तरफ से ये एक प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इसको 2 महीने पहले ये स्टार्ट करें, रिटायरमेंट के टाइम से डेट से पहले ये इनिशिएट करें प्रोसेस और कंसल्टेशन शुरू करें विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह इन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, इधर भी जिस तरह वो करते हैं हर इशू के मतलब वो इस किस्म का उनका रवैया होता है या उनकी अप्रोच होती है। तो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये पहली दफ़ा हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लेटर लिखा है 6 दिन पहले कि दिन कोई नहीं रहेगा उनकी रिटायरमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, तो आपने इनिशिएट नहीं किया तो इसको इनिशिएट करें। तो मेरा ये प्रोसेस अब शुरू हुआ है, जो बहुत थोड़ा टाइम है, 6 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, 2 दिन रह गए। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट में भी एक जो केस हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने भी शायद कोई लेटर भेजा है कि अगर हमें 15 दिन दे दिए जाएँ और ये चीफ इलेक्शन कमीशन कंटिन्यू करते रहें उस टिल दैट टाइम, तो इस टाइम के दौरान हम ये कोई मुकर्रर कर देंगे चीफ इलेक्शन कमीशन।